Welcome to our series In Pursuit of Excellence, presented by Sahapedia and Sangeet Vidyaniketan. Today we have amongst us renowned Odissi dancers, Srimati Sujata Mohapatra, who was recently awarded the Sangeet Natak Academy Award for Odissi. Namaste Sujata Appa, kemite acho apna? नमस्ते बोला अच्छी तो अपा जैसे हम लोग बात कर रहे थे आपके गुरुजी के मिलने से और आपका उनके सीखने के बारे में, उसके पहले मैं जानना चाहूंगा कि आपा आपने कैसे डांस कैसे शुरू किया और शुरुआत से ही आपने ओडिसी किया। आप थोड़ा अगर अपनी पहली अर्ली लाइफ के बारे में थोड़ा हमें बता पाए तो। पहली बात है कि मैं हिंदी में और इंग्लिश में बोथ लैंग्वेज में बोलूंगी। इज इट ओके? एब्सोल्युटली। मैंने मेरे मम्मी इज अ म्यूजिक टीचर, सो आई स्टार्टेड माय डांस कैरियर विथ माय मदर। वो मेरी पहली गुरु है, जिनसे मैं बालेश्वर इज माय नेटिव प्लेस। तो बालेश्वर में मैंने डांस सीखना शुरू किया। मम्मी से शुरू करके फिर मैंने एक डांस का स्कूल था जो कि नृत्य संगीत कला मंदिर बालेश्वर में, तो उधर भी मैंने जब गई तो उधर दो टीचर थे, एक सुधाकर साहू और एक लिंगराज बेहरा। तो दोनों के साथ मेरा जो शिक्षा शुरू हुई, एंड देन आई कंटिन्यू because I was doing my education also. So मेरा जब एजुकेशन चालू हुआ था तो एजुकेशन खत्म करके मेरा बीए खत्म हुआ, then I came to कटक कला विकास केंद्र. Until then I didn't see Guruji in my life. I heard about him, I have seen him in videos, in Doordarshan. But then I was guided by one student of Guruji. His name is Guru Sri Raghunath Datta. He was also one of the disciple of Guruji, and I started learning with him. और कटक कला विकास केंद्र जहाँ पे गुरुजी एक्चुअली उनका कैरियर का कुछ समय उधर भी टीचिंग कर रहे थे। सो उधर मैंने रघुनाथ दत्त जी के अंडर में गाइडेड में सीखा। उसके बाद मैं एमए कर रही थी इन रेवेंसा कॉलेज। तो रेवेंसा कॉलेज में जब एमए कर रही थी पढ़ाई में, एजुकेशन में, तब एक इंटरव्यू निकला। तो जो इंटरव्यू निकला ओडिसी रिसर्च सेंटर का, तो ओडिसी रिसर्च सेंटर इन भुवनेश्वर, where Kumkum Mahanti was the chief executive that time, and Guruji, Padma Vibhushan Guru Kevacharan Mahapatra himself was the main guru in that institution. तो मेरे पापा ने बोले कि तुम इंटरव्यू के लिए अप्लाई करो, अगर तुमको मिलेगा देन यू कंटिन्यू विद दैट, बिकॉज ये अच्छा है कि इतने बड़े गुरु के गाइडेंस मिलेगा, and that too you will get a scholarship, 750 rupees स्कॉलरशिप मिलेगा, और तुम उधर रहोगे, अपना साधना करोगे, जो कि पूरा टाइम you can convert with dance, and the same time if you want to give your exam in MA you can continue also with your degrees, because मेरा master degree चल रहा था, so I didn't want to discontinue, but I have to discontinue my college going because कटक भुवनेश्वर जाना आना मुश्किल था। और भुवनेश्वर में तुमको ये जो ओडिसी रिसर्च सेंटर का कंडीशन था, you have to stay there in the hostel and you have to continue your dance. So anyway, by God's grace, that was the first time when I came to give the interview, and I was been selected, and Guruji, Sanjukta Panigrahi ji, Kumkum Mahanti ji, all big short people were there in the interview, and मेरे को जो मिला उधर, वो select किया interview में, not because of my dance,
that was, it's very like I can say ki it was not for my dance, but because I was from a place Balasore. It's a remote place considered as Bhubaneswar, and they want to promote in each district dancers because they know the training in Bhubaneswar, the training in a proper place. It will be never possible in a place where it is remote in art. Maybe there are many artists from Balasore. There are very film artists, very famous film artists. They belongs to Balasore. But in dance, it is not that way, like upgraded. So I felt I dance whatever I have learned from my mother and whatever I have learned from my gurus. And with due respect to all of them, whatever they have taught, I tried my level best to do it. And luck is also the other thing, and God's grace. So, including everything, maybe the destiny was I will be a dancer. So, all the things was helping me to come to get the guidance from Kelucharan Mahapatra. So, that was my luck. So, I was been selected in Odisha Research Center, and then I continue training under the guidance of this great guru. And first day, sorry, Yeah, continue. no, I was just asking which year was this when you started in Wars? It is 87. 87. Okay. Okay. Hmm. So you were saying the first. 87 or 87 or 89. I don't know. 87 I joined, but then 89 after my internees was going to complete. But then they have selected me for another 2 more years. So they say you continue because when I entered just as a dancer from a remote place. But then when I continue with a guru like Guruji, it just changed the life. The first day of my class when he came and he used to call me Kali. Kali means black color. So I am my color complexion is dark. So he immediately said, "Hey Kali, tu kotu, kotu vastu," means where you have come from. Then I said, "I have come from Balasur." Then he said, "Balasur, Balasur is not a good place." Then I smiled and I said, "Why?" Then he also smiled and he didn't say anything. But later part I understood why he was saying. Then he said one line. He said, "Baleswarya are Tautariya." Tautariya means those who are dishonest. They, they say something, they do something. So he immediately said that. But for me, it was like something which came directly to, which hit directly to my heart. When I said, how come he said this, such a big guru? He will be saying definitely Guruji must be having a bitter experience with Balasore. That's why he must have said that. Otherwise, Guruji is not a person to be biased by anybody unless otherwise he himself had some bad experience with that. Anyway, that day gone, and then I continue with learning. But maybe this is something when like पहले तुम आओ अगर कोई तुमको टोके तो वो सारा जिंदगी याद रहता है. अगर कोई ऐसे ग्रांटेड टेकन एज ग्रांटेड करके हाँ 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 सब कुछ अच्छा है बोल के कर देते, शायद मेरे मन में वो जिद पैदा नहीं होती. तो वो जिद क्या थी कि मेरे बालेश्वर means I belongs to Balasore. If Baleswar has done something wrong with this kind of guru who is pride of our nation, why can't I change the complete scenario to make something very good which will give him more, Respect. like respect. So maybe I was very small to take the decision like this.
But that was my life. I could take my decision on my own, and I can keep my determination, discipline, everything. So that was my first step and first experience with Guruji. It started like that. But then slowly, slowly, I understood that he has a different likeness to me, because I was the first day when I was doing Tribhangi. So he came, and he, you know, that in Tribhangi we do the three bends. One is from neck point, second is torso, and the third is knee point. In the torso, particularly in the torso part, I was maybe very straight. So he came in from the behind and he pushed in the way. So my torso automatically went like that. The way he touched me, he touched my torso to make it bend, and the same time my mind clicked. He is the man who can make me a dancer. Just for a little time, that that great moment, I felt he is the real architect जो मेरे को एक स्कल्पचर बना सकती है. Yeah. तो तो ये मेरा बहुत अंदर से रेस्पेक्ट आया. और जैसे बोलते हैं ना कि ये उनका स्पिरिट, उनका एनर्जी और मेरा लगन, ये दोनों एक जगह पे ब्लेंड हुआ. वो एक एक मूवमेंट होता है जो क्लिक होता है. सो मे बी हम लोग बोलते हैं शुभ मुहूर्त, एक अच्छा मुहूर्त. तो मे बी दैट वाज मे बी ग्लिम्स ऑफ सेकंड, बट दैट रियली क्लिक्ड. एंड मेरा मन में वो बैठा कि इफ मैं डांसर बनूंगी तो उन्हीं के अंडर में ही बनूंगी. And he can make me a dancer if I want to make my career as a dancer. Until then, I was never thinking that I will be a dancer and dance will be my profession, you know. I was doing because my parents was pushing me and I have a likeness for dance, and so I came. But eventually, by God's grace, it happened to be, you know, I came, joined with Guruji and Guruji's blessings, and then my sincerity, his blessings, his hand, his energy, his creativity, his creation, his everything molded me so nicely. So he become my ideal forever in my life. That's how I become a dancer. This is my entire sketch of my life, I told you. And Appa, how was the training with Guruji in those initial years? Was he a hard taskmaster? Was he, gentle? कैसे सिखाते थे? उनका training का technique कैसा था? Style कैसा था? How was he as a teacher? He was very gentle. He was very tough. आप ये दोनों को कौन सा थ्रेड में बांधेंगे, बांध सकते हैं. वो जब गुस्सा होते थे तो एक्सट्रीम गुस्सा होते थे, और वो जो पोलाइटली बोलते थे वो स्लो पॉइजन जैसे भी काम करता था. ही और उन ही सच ए गुरु. उनको मालूम है कि कैसे किसको कौन सा मुहूर्त में कैसे बताने से वो मोल्ड होएगा, वो ट्विस्ट होएगा, और वो अपने आप महसूस करेगा गलती कहाँ पे किया है. तो ये तो एक बहुत बड़ी बात है ना, वो सब टीचर का अंदर दैट IQ, वो जो देखने का शैली. एक गुरु, बिकॉज डांस इज ए विजुअल आर्ट, व्हेन ए गुरु सीज ए बॉडी, अगर इतना इनर इनर क्या बोलते हैं, इनर एनर्जी नहीं होएगा, तो फिर आप एक बॉडी को सिर्फ एक बॉडी देख सकते हैं, पर बॉडी का अंदर क्या स्किल है वो आप नहीं देख सकते हैं. अनलेस अदरवाइज you are that kind of guru who wants to make somebody perfect, because he was a perfectionist and dance was his own creation, and he created. So when he created, like I can tell you a very little example, like a mother and a child. What is the relationship between a mother and child? Very caring, very protecting, and very giving, and very much sharing. But very strict. So yes,
बिकॉज हाँ, जो बोलते हैं श्रृंखला, वो वो जो डिसिप्लिन सिखाते हैं, प्यार से भी सिखाते हैं और ताड़न से भी सिखाते हैं और बहुत पैम्पर करके भी सिखाते हैं, वो सिर्फ एक मदर का क्वालिटी है। सो गुरुजी के पास वो सब क्वालिटी था जिसके लिए उनको हम एक गुरु बोल सकते हैं। गुरु का शब्द जो भारी होता है, हम बोलते हैं ना, गुरु का जो शब्द है वो बहुत गंभीर है। वो गंभीर क्यों है? बिकॉज उन लोग लाइट नहीं है, उन लोग बहुत डीप है। अगर डीप है, गहराई है, जो गहराई में काम करते हैं, वो ऐसे आप लोग को नहीं छोड़ सकते हैं। आपको प्यार से समझाएंगे। सो ही वॉज ए वेरी हार्ड टास्क मास्टर। वो उनको अगर चाहिए कि तुमको डांस सिखाना है, तो वो कैसे भी एंगल से तुमको डांस ही सिखाएंगे, क्योंकि he was the family member, he was the main family member who wants to make his family bigger, and his main intention is Odissi, Yes. and he wants to take care of Odissi, and he wants to make the family grow. How he could make, if he will give that affection to everybody and heart task to everybody in very different multiple angle, then only he can achieve. So Guruji was like that. Yeah. And Appa, of course, I talked to you about you being his daughter-in-law and also a dancer, and how was that relationship. But before that, I want to talk about when I'm sure in all those years with Guruji, आपने उनको choreographies बनाते हुए देखा होगा, you know. So I want to understand what was Guruji's inspiration. क्या वो मूर्तियों को देखते थे, क्या वो पटचित्र को देखते थे, रिदम का, music ka, he used to work with Bhuvneshwar Mishra ji for a long time. So I want to understand, how did Guruji approached choreography, because his choreographies are, just classic and timeless now. If you can tell us about that. First thing, he was a man of observation. वो सबको ऑब्जर्व करते थे। आपने जो जो क्राइटेरिया बताया एक डांस कोरियोग्राफी के लिए, ये तो डेफिनेटली दीज आर द मेन पॉइंट्स, इज द कोर टू मेक ए कोरियोग्राफी। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, वो क्रिएशन करने के लिए सिर्फ इतना चीज नहीं चाहिए। एक डेली टू डेली लाइफ में एक एक्सपीरियंस जो होता है, वो उसको इनपुट करते थे। इसीलिए जो भी कोरियोग्राफी करते थे उसमें जो नेचुरलिटी, वो जो फ्लेवर ऑफ the beauty of the original essence of Odisha, वो था। क्योंकि कोरियोग्राफर तो बहुत सब कोई बन सकते हैं जिसके पास कोरियोग्राफी सेंस है। जो भी कोरियोग्राफी करते हैं, आपने जो जो बताया वो एलिमेंट तो लेते ही, नहीं तो नहीं हो। रिदम को छोड़ो तो, म्यूजिक को छोड़ो तो, अगर क्रिएटिविटी माइंड को छोड़ो तो फिर कोरियोग्राफी हो ही नहीं सकता है। पर apart from that, what makes Guruji exceptional is his ability of observing each thing, very minute observation, which makes he incorporated everything in his choreography. That's why कोई भी अभिनय बोलो, जैसे वो स्कल्पचर देखते थे, माइंड में एक विजुअल करते थे, एक because the first thing that he is from a पटचित्र family, palm leaf painters family, जिसके लिए उनका दिमाग नहीं, उनका आंख हमेशा देख के आया है वो जो पेंटिंग। और वो पेंटिंग में बहुत बहुत, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, फिलिग्री वर्क, बहुत इंट्रिकेसी, बहुत वो जो ब्यूटी है पटचित्र का, जब ब्यूटी है वो पूरा स्केच पेंटिंग तो नहीं है, उसका अंदर बहुत भरा हुआ चीज है। तो वो जो चीज है वो भी उनका दिमाग में है। तो वो जो भी काम करते थे उसको खाली नहीं छोड़ते थे, उसको भरा हुआ छोड़ते थे। तो एक चीज को आप पूरा, मैंने बॉटम, टिप्स टू बॉटम, अगर उसको भरा हुआ करेंगे तो इट विल नेवर लुक हेजी, बिकॉज माइंड इज क्लीन।
तो अगर माइंड क्लीन है और काम क्लीन है, और तो फिर ये दो क्लीननेस वो चीज को अपना ब्यूटी को बढ़ाया बढ़ाया करता है, जो कि गुरुजी का है. It was the first inspiration from his house that he is from, belongs to a Patachitra family. और सेकंड है उनका फादर वाज ए वेरी गुड मर्दला प्लेयर, जो कि रिदम का सेंस इतना एक्सीलेंट है. एंड ही वाज वेरी क्रिएटिव, and he himself was a percussion player, which helped him to choreography in so beautifully in rhythm way. And definitely जैसे आपने बोला पंडित भुवनेश्वर मिश्र जी और पंडित रघुनाथ पाणिग्राही जी, all big people surrounding him, those who are great musicians, who who also with Guruji was like a blend. गुरुजी का ज्ञान और उन लोगों का ज्ञान, ये दोनों जब मिल जाता था तो म्यूजिकली the choreography become very strong, when the composition become very strong, and only when the composition becomes strong and the choreography, dance choreographer is not that strong, then the music will eat the dance. क्योंकि म्यूजिक बहुत ऊपर हो जाएगा और डांस बहुत कम हो जाएगा. पर इन लोग ऐसा नहीं थे, इन लोग इक्वली सो गुड, बिकॉज गुरुजी वाज हैविंग so much knowledge of everything. ये लोग बराबर के players थे. They were yes, yeah. So it actually हम लोग बोलते हैं उड़िया में मणि कांचन जोग, तो उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं मुझे मालूम नहीं है, लेकिन वो जिसे हिंदी में बोलते हैं सोने पे सुहागा. तो गुरुजी के ये जो काम में उनका इच्छा था और उनको मिला ऐसा एलिमेंट्स, और उनके जो सहयोगी कलाकार थे, और जैसे डांसर जैसे संयुक्ता पाणिग्राही जी, कुमकुम महांती, सोनाल मानसिंह, माधवी मुदगल, so many, Minati Misra ji, Priyambada has met all many dancer. Also, जैसे डांसर अच्छा बनाए, become a very good guru, और म्यूजिक कोरियोग्राफर जो उनके साथ थे, उन लोग एक्सीलेंट एंड जीनियस माइंड, जिनके साथ वो काम करते थे. और अदर स्टाइल जो भी, जैसे बिरजू महाराज जी, वेंपटी चिन्ना सत्यम जी, कलानिधि नारायण जी, इन लोगों के साथ काम करते करते उनका जो एक्सपीरियंस, वो जो डेवलपमेंट, तो सब दिशा से गुरुजी का ऊपर भगवान का बहुत कृपा थी. अगर वो नहीं होते तो हमारा ओडिसी डांस का इतना जो बड़पन शायद हमको नहीं मिलता, because he was not only a successor by himself, but in each every angle he become a very successful man. So ये है. और दूसरी बात है कि मैंने जो बोला कि डेली टू डेली लाइफ जो उनको इम्पैक्ट करता था, एक छोटी सी बात, लाइक उनको जैसे जब डांस कोरियोग्राफी करते थे तो वो तो रास पार्टी में जो मोहन सुंदर देव गोस्वामी उनके जो गुरु थे, रास का गुरु थे, तो उनको अभिनय सिखाते थे, तो उनके अभिनय के गुरु थे. और फिर वो अन्नपूर्णा थिएटर में, अन्नपूर्णा बी ग्रुप थिएटर में, गुरुजी वाज वन ऑफ द लाइक डांसर एक्टर, जो थिएटर का जो बैकग्राउंड है वो उनको बहुत हेल्प करता था एज ए डांसर. बिकॉज जो बोलते हैं ना, ईच ऑफ उनका जो क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं जो स्किन फेस का, ईच थिंग वाज टॉकिंग so impressive, so expressive, everything, like everybody can fall in love when he does Radha. So all his choreography is very much inspired by many things, and which he incorporated in his work. So it makes very natural, it doesn't look very artificial or technical. And the grace, the beauty, everything was compact. So it was a real nice thing for Gurujis
to choreograph each thing and each sense which helped him to be a success choreographer And in Appa, dance field. so just one thing, I would like to have your comment. So when you see Guruji's old choreographies and you see Odissi choreographies currently which are now made, what difference do you see? Like you pointed out कि organic होती थी, original daily life से inspired होती थी. तो आप थोड़ा बताएंगे आपका क्या observation है? See, first thing, I don't want to compare. First thing, don't want to compare. Why I don't want to compare? Because एक लेबल होता है. मैं अगर एक डिस्टिंक्शन लेवल का पर्सन को अगर मैं एक फर्स्ट क्लास लेवल को कंपेयर करूंगी तो वो कभी कंपेयर नहीं हो सकता है. तो गुरुजी वाज ए मैस्ट्रो कोरियोग्राफी, एक जीनियस कोरियोग्राफी, एक लेजेंड का कोरियोग्राफी का सोच. पहली बात सोच, उनके टाइम पे जो सोचना वो बहुत डिफरेंट वे में था. पहली बात मैं बोल रही हूँ कि गुरुजी कभी नहीं बोलते थे कि ये मैं किया है, क्योंकि इलियाना चितारिस्ती जो गुरुजी के एक इटालियन स्टूडेंट है, वो एक लिखा है किताब, वो नेम ऑफ द गुरु. तो उसमें लिखा है गुरुजी इज द ओनली मैन who never said that I have done this. लेकिन उन्होंने सब कुछ किया, लेकिन कभी नहीं बोलते थे कि मैं किया. क्या बोलते थे? वो बोलते मेरे परंपरा में सब कुछ है. तो परंपरा क्या परंपरा? वो जो टेम्पल में जो सब स्कल्पचर्स है उसको जो बनाया है, उनके दिमाग में तो सब कुछ था, इसलिए वो पोर्ट्रे किए हैं एक स्टोन के माध्यम से. तो तब तो हम जन्म नहीं लिए थे. तो फिर हमारा परंपरा में कला था और सिर्फ वो कला को बाहर लाने के लिए हम लोग मीडिया है. वो जो एक समर्पण भाव, वो जो समर्पण भाव उनके दिमाग में है, और जो भी बोलते थे कि ये मैं नहीं किया, ये परंपरा में था और ये सब भगवान के कृपा से हम लोग के माध्यम से हम बाहर के लोग के सामने लाया. और बोलते थे ये जो हम क्रिएशन किए हैं वो हम हमेशा समर्पण करते हैं भगवान को. पहले डिवाइन पावर को हम समर्पण करते हैं और मेरा डांस महाप्रसाद जैसा है, प्रसाद है. आई ऑलवेज ऑफर. तो जो सरेंडर भाव, जो समर्पण भाव, इससे पता चलता है गुरुजी वाज ए ग्रेट डिवोटी. तो उनका मन में बहुत डिवोशन था. आप मुझे अभी बोलिए, अभी जो कोरियोग्राफी करते हैं उनके मन में, उनके दिमाग में आजकल का जो सिनेरियो वो ज्यादा दिमाग में है, उसको देख के उन लोग कोरियोग्राफी करते हैं, राइट? बट गुरुजी के दिमाग में क्या है? परंपरा है और डिवाइन सोच है, समर्पण भाव है. ये तो एक कोरियोग्राफर को अलग ही बना देता है. तो इट इज नेवर कंपैरिजन. अगर सोच ही अलग है तो क्रिएशन तो अलग होएगा ही ना. तो दिस इज द सिंपल वे टू. Is this the reason because you majorly do Guruji's choreographies only, you know, and I mean, you have not delved that much into choreographing your own pieces, you know, you really take Guruji's legacy forward, है ना, कि जो गुरुजी ने बनाया है उसको मैं संभाल के रखूंगी and I will take it for the next generation. So is this the reason that you indulge in that, और आप थोड़ा बता सकते हैं कि क्या आपके मन में बात है? यस. पहली बात है आपने जो बोला कि यू नो लाइक आई एम रिजिड टू डू
whatever I do, because ये भी मेरा सोच है. इस ऐसा नहीं कि मैं कोरियोग्राफी करना नहीं चाहती हूँ और नहीं करूँगी और नहीं किया है. When a time comes, when there is a organizer wants something, I did. मैंने थोड़ा बहुत किया है. पर मेरा प्रेफरेंस क्या है? जो अच्छा चीज है, जो एक मास्टर माइंड ने क्रिएशन किया है, उसको तो करने वाला कोई होना चाहिए. अगर हम लोग सब एक नूतन दिशा को देखना चाहेंगे और चलेंगे, तो फिर इन लोगों का दिखाया हुआ पथ को कौन चलेगा? Who will walk? Who will follow? And और दूसरी बात है, हम भी टीचर है, हम भी टीचिंग करते हैं. हमारे स्टूडेंट जब अच्छा डांस करते हैं, हम सोचते हैं कि ये हमारे गुरु का लिगासी को लेके आगे जाएंगे. Yes, absolutely. पर अगर उन लोग गुरुजी को देखा नहीं, सिर्फ सुन के वो लिगासी में जाएंगे और जो देखा है उनसे सीखा है, तो वो कैसे जाएंगे? हमने तो उनसे सीखा है, हमने तो उनको देखा है, हमने उनका जो कष्ट को देखा है. तो अगर हम जितना महसूस कर सकेंगे, वो जितना पास ऑन करने से भी वो जेरॉक्स कॉपी होएगा, कभी ओरिजिनल नहीं होएगा. राइट? तो यही मेरा सोच है, जिसके लिए आई डोंट वांट टू डू समथिंग न्यू, and maybe in future I will do, but now at present whatever is there, मैंने अभी तक खत्म नहीं किया है. मेरा जर्नी शुरू हुआ है. खत्म कब होएगा मुझे पता नहीं है. I can't say the future, but I can tell the present. ये प्रेजेंट में मेरे को जितना काम है वो अभी तक खत्म नहीं हुआ है, तो मैं प्रेजेंट खत्म नहीं करके फ्यूचर को टच नहीं करूंगी, क्योंकि ये जो पास्ट एंड प्रेजेंट मेरा फ्यूचर बनाएगा. अगर मैं जैसे मेरा गुरु का काम को लगन के साथ करूंगी, ऐसे ही मैं मार्ग दिखाऊंगी मेरे नेक्स्ट जनरेशन के लिए. अगर मैं भी नया के पीछे भागूंगी, तो ये जो मेरे गुरु जी का परंपरा जो सोच था, वो कहाँ जाएगा? That is the reason why I don't run behind the light, the flickering, जैसे बोलते हैं फ्लिकिंग लाइट, और स्टार के पीछे मैं नहीं भागती हूँ. मैं सन के पीछे भागना चाहती हूँ. And sun is one, stars are many. And I don't want to go behind many. I want to go behind one and good and best. Yeah, and also correctly said, Appa, Guruji's body of work is so huge कि if a dancer starts, 50 साल लगेंगे उसको पूरा आइटम्स करने पे. Exactly. तो मैंने बोला ना, उनका जो जर्नी है, उनके लाइफ टाइम में उन्होंने जितना क्रिएशन किया है, उसको करने के लिए तो फिर कोई चाहिए ना, जो स्टेडी दिमाग है, जिसका स्टेडी दिमाग है कि नहीं वो अच्छा दिखता है तो फिर मैं वो अच्छा करूंगी, वो ज्यादा अच्छा दिखता है. बट ऑल ग्लिटरिंग थिंग्स आर नॉट गोल्ड. तो मेरे को पहले, हाँ बोलो. नहीं आप बताइए. मेरे को पहले सोचना है ठंडे दिमाग से. If I want to be a dancer and in his gharana, what I should follow and what I should do and whom to follow. If that is steady, if my focus is steady, then there is a will and there is a way, and I will definitely do it without any disturbance. Yes, absolutely. And Appa, I want to understand, so this is Guruji seen as a choreographer, as a great maestro, how is he as a father-in-law, and what was your relationship when you got married into his family? You were still dancing, you were his daughter-in-law, so how was that relationship? I want to know. I can say he is a person with whom you can make 100 relationships.
he is that liberal. As a human being, he was very, very caring, very supportive, and like as a fatherly figure, you can say, like, in any moment you want his support, he is there. So I feel from, like, मैं अपने एक्सपीरियंस से बोलती हूँ, मेरे लिए मैं कभी उनको फादर इन लॉ के हिसाब से नहीं देखा, क्योंकि इन लॉ होने से थोड़ा डिस्टेंस बढ़ जाता है, क्योंकि आइन के हिसाब से वो मेरे पापा है, लेकिन सचमुच मेरा पापा नहीं है। पर मैं वो बैरियर को कभी नहीं रखना चाहती थी, क्योंकि वो मेरे को उस टाइप का बिहेव कभी नहीं करते थे। He never made me feel that he is my father-in-law. He made me always understand that I am his father in every angle. मतलब वो कभी मुझे महसूस करने नहीं दिए थे कि मेरा समय कभी इधर उधर में चला जाता है और मेरे को पापा का घर जाना जरूरी है। नॉर्मली व्हाट हैपेंस, जब ससुराल में आते हैं सब लोग सोचते हैं कि नहीं, आज मेरा थोड़ा अपसेट है, ये है से है, मैं थोड़ा मम्मी का घर जाऊंगी तब फ्रेश होके आ जाऊंगी। He never gave me that chance because as I said, no, he is very supportive and caring. So he was so much care. So वो इतना केयर करते थे, तो कभी कभी मुझे कभी जाने का जरूरत नहीं था मेरे पापा मम्मी के घर, और अपसेट होने का जरूरत नहीं था। And as we know, we all are human being, so we get upset in the classroom में, because मेरा तो दो परिचय था, एक डांसर और एक बहू। तो क्लासरूम के बाहर मैं बहू हूँ और क्लासरूम का अंदर में शिष्या हूँ, और उन्होंने कभी मुझे क्लासरूम का बाहर और क्लासरूम का भीतर का जो डिसिप्लिन को कभी इंडिसिप्लिन होने नहीं दिया था। He always treated me as a student in the class and very strict, and he will just then and there he will just tell you exactly what you do the mistake, no partiality. Apart from the class, he become a friend. ऐसे बहू नहीं, वो पूरा केयरिंग, हाँ ये खाना पसंद करते हैं, और उनका टेस्ट मेरा टेस्ट खाने का बहुत सिमिलर था। And he was a very good non-veg eater, and I used to eat very good non-veg. I like, so we used to eat non-veg a lot. So हम लोग का खाने का, हम लोग का सोच में कुछ मिलन था, जिसके लिए मैं कभी, और every day morning when I come from my bed, I go to his room and I do pranam, and वो अपना हाथ को मेरे सर पे ऐसे रख देते थे। वो जो हाथ रखते थे एवरी डे मॉर्निंग, वो जो टच में कुछ तो एक एनर्जी था, जिससे मुझे पता चलता है कि उनका इनर इमोशन क्या है। वो अभी गुस्से में किए कि शांत में किए कि कितना प्यार से किए। तो when a person steadily does the same way of touching, it is not easy. That means you have to understand how that man is so strong and steady. उनको कुछ भी शक्ति हिला नहीं सकता है। And when you get a steady hand on your head as a blessing, you know that you are supported by God. And that was my main strength, for which I never treated him, neither he treated me, that in law. वो मेरे पापा जैसे थे और मैं उनकी बेटी जैसी थी। तो इसीलिए वो रिलेशन मुझे कभी मुश्किल में नहीं डाला था। और एज ए स्टूडेंट, because he was strict and he was always making to do the dance nicely, because he wanted me to be a dancer and dance should be my life. So that also I can understand, because his way of teaching, his way of love, his way of caring, that I can tell you in very little instant, like example,
like when I was, like my baby was born, you know, like my mother-in-law, I mean, she can do, she can help, but father-in-law, because he's a dancer and very active, so he used to hold my baby and I used to do my makeup. And then after my makeup is done, then he used to do his makeup. And when I go for dance, then he takes that feeding bottle and he puts in my daughter's mouth, and you know, takes care in the behind screen, like behind stage, near stage का side में बैठ के, और मैं डांस करने के लिए जाती थी, और शिबू पखवत, मेरे हस्बैंड पखवज बजाते थे और म्यूजिशियन, तो ऐसे ही वो मुझे हेल्प करते थे. तो वो जो केयर, बिकॉज ही वांटेड मी टू बी ए डांसर, सो इट्स अ वेरी क्लीन पिक्चर that as a guru he justified his work to make me as a dancer. उसने कभी भी कमी रहना नहीं दिया, और एज ए फादर इन लॉ इतना प्यार दिया कि मेरे को मेरा मायके जाने का जरूरत नहीं था. सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड, आई डोंट हैव टू explain, but you can understand what was the relationship and how it was with him. And so gladly I accept this both. नहीं तो ये दोनों को बैलेंस करना इतना इजी नहीं है, पर वो सबको बैलेंस करते थे ना, इसीलिए मेरे को भी ये बैलेंस कैसे होएगा वो सिखाते थे. एंड एक आखिरी क्वेश्चन आपसे आज पूछना चाहूंगा, ऑल्दो देयर इज so many things which I want to ask you, but हमारा टाइम थोड़ा कम है. तो जैसे गुरुजी ने बोला कि उनकी जो परंपरा थी, गुरुजी ने भी एक परंपरा शुरू करी which we all are now a part of. So where do you see his parampara going forward in the coming years, and what is your advice to new young dancers who are learning Odissi? What would you like to say? हमारे पास कितना टाइम है मुझे बोल दो, तो मैं उसको इतना शॉर्ट कर दूंगी. है आप बताइए प्लीज. तो पहली जो क्वेश्चन आपने बोला गुरुजी का परंपरा के बारे में, क्या बोला आपने? Guruji has also created his own parampara now, you know, although Guruji followed somebody's parampara of Gotipua or Patachitra, but अब एक गुरु केलेश्वर मोहपात्रा घराना है उनके नाम पे. हाँ. तो उसको आप कहाँ जाते हुए देखते हैं with the current practitioners, and also what is your advice? या पहले मैं ये बताती हूँ गुरुजी का जो काम है वो इतना रिच है. जैसे हम बोलते हैं ना, ओडिसी इज सच ए रिच कल्चर, द क्लासिकल डांस हिमसेल्फ इज सच ए रिच कल्चर. और इसको परंपरा को जो लेके जाते थे उन लोग बहुत कष्ट किए हैं. तो उनको जो वो उनका कष्ट जो देखे हैं, वो परंपरा को आगे लेने के लिए अपना लगन से लेना चाहते हैं. ईच एंड एवरी वन इन गुरुजी's घराना एंड गुरुजी's लाइक गुरुजी का बनाया हुआ जो है, मैंने आज तक भी देखा है सबके मन में, जैसे भी 10 साल के बाद भी, अगर शायद शादी के बाद, डांस छोड़ने के बाद, फिर भी 10 साल 15 साल के बाद भी जब वो वापस ही आते हैं डांस के फील्ड में, तब भी उनका सोच में है गुरुजी हमको जैसे सिखाए थे हम उसको ऐसे ही आगे लेने का कोशिश. दैट मीन्स जितना भी हो उसका क्षति नहीं होता है. Nobody wants कि इस, क्योंकि उन लोग सब लोग गुरुजी के देखे हैं, गुरुजी का लगन देखे हैं, गुरुजी का काम देखे हैं, तो सेम स्पिरिट को आगे लेने के लिए सबका कोशिश है. और जैसे I am also one of his student and I see when the dancer like Sanjukta Panigrahi, Minati Mishra, all the big stars, when I see them I get more inspired because उन लोग उनके गुरु को बहुत प्यार करते थे और उन्हीं के रास्ते पे जाना चाहते थे. तो वही रास्ता को हमको दिखाया है और हमको सिर्फ चलना है अपना निष्ठा के साथ. तभी मैंने बोलूंगी, जैसे हम लोग बोलते, गुरुजी हमेशा बोलते थे एक लाइन, जब निष्ठा अच्छी ताले प्रतिष्ठा अच्छी. अगर आपके पास निष्ठा है तो आप जरूर प्रतिष्ठा बना सकते हैं. एंड सेकेंड थिंग, डू नॉट रन बिहाइंड द अपॉर्चुनिटी, let the opportunity go behind you. And how it is possible? आप काम करते रहो. आपका काम के साथ आपका भाग्य जो डेस्टिनी बदलता है,
Yes, पर आप अगर डेस्टिनी को बदलाना चाहते हो वो कभी संभव नहीं है। सिर्फ कर्म ही एक मार्ग है जिससे के साथ आप बदल सकते हो। तो his way of that spirituality or breathing has been impacted all the students, and I think because of that spirituality, that work, that sadhana, सब हम लोग एक एक साधक है और वो साधना को हम लोग देखा है और वो साधना के रास्ते पे जाने के लिए वो इजी नहीं होएगा, नथिंग इज इजी, और इजी नहीं होएगा। अगर लगन के साथ हम करेंगे तो हम भी एक दिन उनके काम को अच्छी ढंग से ले सकते हैं। और पर्सनली इंडिविजुअली एज ए डांसर, एज ए डॉटर इन लॉ, एज ए फैमिली मेंबर, आई फॉर मी माय ओथ not just to keep the Odissi, but to keep his name, his gharana in such a height what he left and what he has hoped for us to continue that. Now the second question for the young generation, what I would like to suggest. See, all new generation students, they are very talented. They remember very fast. They want to do everything very fast. So there is a error, you can say error, that fast doing of thing is not called sadhana. साधना कभी फास्ट स्पीड में नहीं होता है। साधिबा को साधना कहती। हमको अगर हम ये काम करते 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 बिकम्स कंक्रीट एंड देन बिकम साधना, ये एक दिन में नहीं होता है। अगर याद रखना, अगर साधना होता तो सब लोग याद रख के उस साधना को विन कर सकते हैं, पर वो नहीं है। इसीलिए do not go fast because slow and steady wins the race, and that will definitely help. और each step आप जब लेते हो उसको फर्मली लो एंड इट टेक्स टाइम। जैसे आपने एक डांस घराना को कोशिश करते हो अपना कैप्चर में रखने के लिए, तो फिर वो जो स्टेप्स है वो सब स्टेप्स को जब लेना पड़ता है उसके लिए टाइम स्पेंड करना पड़ता है, और वो टाइम कभी फास्ट स्पीड में नहीं आता है। मे बी दिस एरा इज गोइंग वेरी फास्ट, अकॉर्डिंग टू द एरा यू हैव टू रन, बट रनिंग आप कितना दूर कर सकते हो? थोड़े देर के बाद आप टायर्ड हो जाओगे, बट आप अगर वॉक करोगे तो ये सेहत के लिए अच्छा भी है और आप ज्यादा देर तक कर सकते हो। तो दिस इज समथिंग व्हाट आई फील कि आपके पास वो संकल्प होना जरूरी है, वो प्रतिज्ञाबद्ध कि मुझे ये करना है। पर ये अगर करना है तो उसको कौन सा चीज के साथ करना है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि हमारे पास दो चीज चाहिए, एक तो पैशन। अगर हमारे पास पैशन है तो फिर हम परफेक्शन लाने के लिए समय दे सकते हैं। अगर हमारे पास पैशन नहीं है तो हम परफेक्शन नहीं कर सकते हैं। और गुरुजी जिनके काम करते हैं वो कैसे थे, पहले वो उसको एनालाइज करना है। उनको अगर हम एनालाइज करेंगे तो he has not made Odissi in one day. He has not refined this dance form by one day. And Rome was never built in a day. So everything takes time, and this is my only request to the younger generation, that they have really talent, they have really buddhi, they can capture everything, but they need to have, the key word is patience. अगर उनके पास पेशेंस है, पैशन है और परफेक्शन करने के लिए लोग चाहते हैं, तो डेफिनेटली दे कैन गो much better way, and they can keep the flag of Guru Kelucharan Mahapatra in a high spirit. Yes, absolutely. And with that, thank you so much आपा। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और बहुत कुछ सीखने को भी मिला। Me as a young dancer, I would like to say, and I hope एक और हम इंटरव्यू कर पाएं जिसमें और डिटेल गुरुजी के बारे में, आपके बारे में हम बात करें। But thank you so much for giving us your time. It was really helpful.
थैंक यू। थैंक यू।